Welcome to the World Understanding Life. To get latest update, please subscribe our channel. Hello friends, welcome to the next video of journey through the time. In this video we'll be studying about the revolt of 1857. The revolt of 1857 is considered as the Indian War of Indian Independence, and this book, The War of Indian Independence 1857, was written by Vinayak Damodar Savarkar back in 1909 in London. It was to encourage the freedom fighter for their struggle of freedom against the British rule. So in this video, we'll try to cover the causes of Great Uprising of 1857, that is discontent among the ruling families, resentment among the peasant and artisans, and Indian response to the social reformers. The major cause was the Indian sepoys, so we'll be studying their resentment of Indian sepoys. First major cause of Indian War of Independence is discontent among the रूलिंग फैमिलीज़. इंडिया की जो रूलिंग फैमिलीज़ है वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थी, जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने 1857 के वॉर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ जो है वो एक्सपांशनिस्ट थी. दे वांट टू एक्सपांड द टेरिटरीज. सो इन द क्वेस्ट दे टूक ओवर टेरिटरीज ऑफ द Indian rulers. They had enforced the subsidiary alliance. We know that in subsidiary alliance, the Indian princes, Indian kings has lost their sovereignty. हिंदुस्तानी राजाओं को फोर्स किया गया कि वो अंग्रेज़ों की सेना अपने रियासत में रखे. वो खुद की सेना नहीं रख सकते थे, और किसी भी दूसरे इंडियन राजा से अगर कुछ रिलेशन रखना है तो अंग्रेज़ी सल्तनत की वो अनुमति ले. दीज आर सम क्लॉजेस ऑफ सब्सिडरी अलायंस विच एंगर्ड द इंडियन रूलिंग क्लास. ब्रिटिशर्स हैड टेकन ओवर some of the sultanates of India through the doctrine of lapse, which says that if emperor king fails to have a legal male heir, then their empire will lapse. जैसे कि सातारा की सल्तनत है, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, इनके पास मेल हायर नहीं थे, इनके लड़के नहीं थे, तो इनकी रियासत अंग्रेज़ों ने हथिया ली थी. द डिसरिस्पेक्ट वॉज शोन टू लोकल रूलर्स. तो एक एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि अवध का जो शासन है वो अंग्रेज़ों ने हथिया लिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस. तो आप देख सकते हैं कि इंडियन शेर जो है उनको अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था. पालतू शेर की तरह उनको ट्रीट करने लगे. सो वी हैड अदर एग्जांपल्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, विच कंपनी डिनाइड. नाना साहेब पेशवा, हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा, was denied his father's pension and was annexed from Wajid Ali Shah on the pretext of misgovernance, and Bahadur Shah Zafar
was humiliated, and it was said that he will be last Mughal ruler, and after that, after him, he will not be his successors will not be able to enter in the red fort. Okay, तो 1856 में ही गवर्नर जनरल कैनिन ने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफ़र ये आखिरी सुल्तान रहेंगे मुग़ल सल्तनत के। उनके जो लड़के हैं कि जो सक्सेसर है उनको सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा, वो किंग नहीं कहे जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट एंगर्ड द रूलिंग क्लास ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दैट देयर वाज रिसेंटमेंट अमंग द फीजेंट एंड आर्टिसंस। फीजेंट और आर्टिसंस में भी नाराज़गी थी। फ्रॉम 1765 they had these revenue policies which became burden on the peasants. Peasants and zamindar hated these high taxes and rigid revenue collection, and there was commercialization of agriculture. So भारतीय किसानों को फोर्स किया जाता था ऐसी चीज़ें ग्रो करने के लिए जो मार्केट में बिकती है, सच एज इंडिगो, ओपियम, कॉटन। तो this commercialization of agriculture has caused a decline of agriculture in India. इसकी वजह से फार्मर्स में भी बहुत सारी नाराज़गी थी। British sought that Indian market for cheap manufactured good, so they displaced Indian ruler by East India Company led withdrawal to the patronage. तो जो भी आर्टिसंस थे उन लोगों को भी अपने जॉब्स जो है वो खोने पड़े, क्योंकि राजाओं के पास इतना पैसा नहीं था। सो एंड ब्रिटिशर्स हैड इंटरवीन्ड इन द इंडियन सोसाइटी, सो दे हैड implemented various laws that were seen as encroachment on the Indian culture. One of the law is sati, and they had banned the sati. They encouraged the widow remarriage. English education was promoted, and in 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own a land and a property. In 1850 new laws were passed to converge into Christianity. तो ये क्रिश्चियनिटी का प्रसार और अलग अलग सहूलियत देना क्रिश्चियनिटी को, और इंडियन कल्चर में उनका जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ गया था। इसकी वजह से सोसाइटी भी बहुत नाराज़ थी। सबसे बड़ा कारण है 1857 की रिवॉल्ट का वो इंडियन सिपॉइज़ में डिस्कंटेंट, इंडियन सिपॉइज़ की नाराज़गी। वो नाराज़ क्यों थे? Because they was paid less, they were not having allowances, and the condition of a service for Indian sepoy was not good. And most importantly, these sepoys were the family from the peasant, so they were reacting what's happening to the countryside and to the villages. It is believed in Indian culture back then was crossing a sea would lose their religion. उस ज़माने में ऐसा मानना था कि अगर समुंदर में जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। So they refused to travel through sea, and those who refused to travel the sea were severely punished. बर्मा में एक वॉर चल रही थी और इंडियन सोल्जर्स को बोला गया था कि आपको सी रूट से जाना है, और इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया था। They do traveled to Burma through land route, वो लैंड रूट से गए थे, फिर भी उन्हें पनिशमेंट मिला। और 1856 में कंपनी ने लॉ बनाया कि whoever is willing to join the army will have to serve overseas। तो इसके वजह से सेना में भी नाराज़गी थी। इमीडिएट रीज़न जो है 1857 की रिवॉल्ट का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल की जो कारतूस है, जो गोली है, इसके ऊपर कार्ट्रिज लगा हुआ था, एंड दैट कार्ट्रिज
हैड टू बाइट विद टीथ, दांतों से उसे काटना पड़ता था. इट इज सेड दैट द कार्ट्रिज ऑफ अ राइफल वॉज रैप्ड इन द फैट ऑफ अ काउ एंड पिग. ऐसी अफवाह फैली कि जो कवर है कार्ट्रिज का वो गाय और सूअर के चमड़े से बना है. एंड काउ इज़ होली फॉर हिंदूज एंड पिग is hated by the Muslims. So soldiers thought this is their cultural encroachment and they will lose their religion. उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर वो ये गाय के और सूअर के चमड़े को दांत से काटेंगे. तो ये इमीडिएट रीज़न था 1857 के वॉर का. तो हमने देखा है अभी कि कॉजेस ऑफ 1857, इसमें रूलिंग क्लास की नाराज़गी, आर्टिसंस और फिजन्स की नाराज़गी और इंडियन सोसाइटी का ब्रिटिश रिफॉर्म्स के तहत नज़रिया और इंडियन सी वॉर. दैट्स इट स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे.